Right now, we have some beautiful art lovers, and they are here with us. Some beautiful people on earth, and with the sense of loving arts. I have a very typical question. क्या आप लोग बताएंगे क्या ये मुमकिन है कि नई जनरेशन तक हम आर्ट फॉर्म को ले जा रहे हैं? कितना परसेंट हमारी यंग जनरेशन किस तरफ जा रही है और आर्ट्स को कितना पहचान रही है या नहीं पहचान रही है? देखिए, I think young generation needs to be exposed. They need to be pushed. Unless you expose them, how will the young generation know? Like my son here, we have been bringing him to NSD ever since he was, I think, 3 years old for Jashne Bachpan, Bal Sangam. That was his exposure to the field of arts when he saw children like him perform. So he's seen Thangta performances, he's done pottery making, mask making and everything. He's engaged with the arts. So where small puppeteers used to be giving shows, he used to see that. We've exposed him to all forms of theatre which children have done for children. So today he's grown up with a love of the arts. But unless had we not exposed him, how will you blame Gen Z for not knowing or not appreciating it? You use the word push. Do you think कि बच्चों को आज बनाकर या पुश कर कर उनको ला सकते हैं? देखिए, पुश शायद थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, बट एक्सपोजर इज़ व्हाट आई वुड से, बिकॉज आई हैव बीन ब्रिंगिंग हिम. वो देख पाया है तो ही इज़ बिकम डिसर्निंग. सो ही नोज दैट what is a true art form, true culture form, and versus watching maybe just a commercial cinema. How well do you agree with her? I agree quite well. I did theatre for around 3 years, thanks to all of this exposure, and I really did enjoy my time during all of that. You are the lucky one because ये बॉलीवुड में होता है कि पेरेंट्स जो है बच्चों को थिएटर की तरफ ले आते हैं या एक्टिंग की तरफ ले आते हैं. So she created a Bollywood for you. No, I didn't pursue it after 3 years, thanks to some academic stuff. Okay. But yeah, when I was doing it, it was quite a lot of fun. But ये बात भी सही है कि मेरे generation के जो लोग हैं, they aren't coming into it. And I won't say it's the generation's fault also, because a lot of places, for example, in my college only, the theatre society, it's just not active. I joined it for about 2 weeks and I realized they aren't doing anything. So वो भी इशू है कि ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, प्रमोशन नहीं है, वैसा कुछ है ही नहीं कुछ. सी जब अपन बात करते हैं ना बॉलीवुड का तो अपन के दिमाग में खाली डायलॉग वायलॉग आता है. कुछ बोल डाल, कुछ सुना डाल. He's not a Bollywood guy at all. Bollywood से बहुत दूर. Horrible at Bollywood. I'm a big Bollywood fan. She's a Bollywood fan. I think there's a lot of amazing stuff happening. In fact, I think Bollywood is a good reason which is exposing a lot of youngsters to Indian art forms. For the first time in Bollywood now they're using northeastern music. जो कभी नहीं होता था, बिहू म्यूजिक. In one of the recent films, they've used that. So they the backdrop of a lot of Bollywood films today. There's a film called Chamkila, which is completely based on Punjab folk music. So I think Bollywood has played a huge role in bringing youngsters to art forms. I think it's brilliant the work Bollywood is doing. So I'm a very big fan, and that's why I see a lot of youngsters actually being very excited about Indian art. So That's a very beautiful thing which you are telling us to the entire world. आप मुझे ये बताइए कि आपको इतना खासा नॉलेज है. Have you done some course or something? No, I think we just we stay in Delhi and we use all the events. Because Delhi has possibly the largest number of cultural events anywhere, and I've lived in many cities. So I think what we do is we go out and really make use of it. You were talking of Qawwalis. You have a good sense. Though I was brought up, my grandma house is at Nizamuddin only. Okay. हम लोग कव्वाली सुनने जाते भी थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ. दरगाह में भी गए, बट नॉट विथ दैट कीन इंटरेस्ट जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने दिया था, जो मैंने अभी सुना है. एंड व्हाट्स you were talking about Kun Fayakun, you were talking about Again, Bollywood. So the reason why once, of course, in Barsat Ki Raat, so many thousand years, many decades back, Qawwali came into the mainstream of the Indian psyche, because they were already right. yes, so they were already we knew what Qawwali is because thanks to the amazing song ये इश्क इश्क है.
But after that, because of Rockstar, while Kun Faya Kun may have become a very very popular pop qawwali, if I may say, but at one point it has helped bring it mainstream, and Bollywood has done a lot of that. There are a lot of very good qawwalis in Bollywood. So you have been going to Nizamuddin Many times since birth, since childhood. and for the Qawwali and for visiting the shrine over there. Qawwali is not just in the dargah. Like, Yeah. I have not grown up with Bollywood. Like, my mother was dead against any exposure to commercial cinema when we were growing up in the 70s. So, हमने सुना है, because we are from a Bengali family and Bengalis are very, very, entrenched in culture and music. Especially. And music, especially. So I have heard Qawwalis. We are a Hindu Bengali family. But हमारे घर में हमने कव्वाली साबरी ब्रदर्स की. So Oh. the first time I heard Qawwali was on a tape cassette. My father was a huge music fan, mother was a huge fan. So साबरी ब्रदर्स की कव्वाली सुन के हम बड़े हुए. उसके बाद जब वर्क हैपेंड, थिएटर हैपेंड, मैं थोड़ा टाइम स्टेज पे बिताया कॉलेज में, तो तब एक्सपोजर था. दिल्ली में रहते हैं तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड. इतने इवेंट्स होते हैं. So I have been fortunate enough to watch the Vadali Bandhu live. दमादम मस्त कलंदर की पूरी स्टोरी. अभी जो गाते हैं कव्वाल गलत गाते हैं. चार चिराग तेरे बलन हमेशा. तो उन्होंने समझाया कि जो चिराग बलते हैं वो बुझ जाते हैं. तो द एक्चुअल वर्ड्स आर नॉट कि चिराग बलना चाहिए, कहते चार चिराग तेरे बलन हमेशा. तो शाहबाज कलंदर के इन हिज ऑनर चार चिराग किस तरह से बलता, पूरी स्टोरी हमने सुनी है एज अ कव्वाली. My God. वी आर लाइक, आई एम अ ह्यूज फैन. काफ़ी कव्वालियाँ तो मुझे ज़बान नहीं आ रही. My God, I thought कि मैं उर्दू में बहुत माहिर हूँ, but I think you're talking of Sindhi or दिस इज Farsi. सिंधी कव्वाली. दिस इज Right, and you have that total ज्ञान. And that gives me an honor, you know why? Because जब हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, it is always something, it's great, and वो greatness में she used the word Hindu and Muslim. That's great because that has got no boundaries or limitation कि आप इधर का we उधर. have grown up in that Ganga Jamuni tehzeeb. Ganga My mother's Jamuni whole tehzeeb. family is from Old Delhi. तो I mean the culture is very syncretic. आप देखिए सूफी बसंत, अभी रिसेंटली हमने इंडिया हैबिटेट सेंटर में सुना निज़ामी बंधु को. हिज फ्रेंड एंड आई वर टुगेदर, और उन्होंने समझाया कि किस तरह से सूफी बसंत मनाया जाता है. निज़ामुद्दीन औलिया साहब के दरगाह में क्यों हुआ था, वो स्टोरी सुनाई कि अमीर खुसरो एक बार जब उनके नेफ्यू की डेथ हो गई निज़ामुद्दीन औलिया साहब की, तो वो बहुत उदास थे. तो खुसरो साहब ने देखा कि कुछ औरतें आ रही हैं टेंपल में पीले फूल लेके नाचते हुए, तो उनको देख के बड़ा अच्छा लगा. उन्होंने खुद घाघरा चोली पहन के पीले फूल लेके वो आ गए, और निज़ामुद्दीन औलिया साहब हंस पड़े उनको देख के. तो उस हंसी की, उनके गम में उनको हंसाने की खुशी में वो पूरा त्यौहार ही बन गया. आप फूल वालों की सैर ले लीजिए, आप निज़ामुद्दीन औलिया साहब के दरगाह में सूफी बसंत ले लीजिए. आपकी बातें सुन के रोंगटे कुछ भी खड़े हो नहीं, रहे हैं. कुछ भी हमने नहीं, बचपने से देखा फूल हमने वालों की बचपन सैर से और, ऐसे ही लेकिन किया, इतनी मुझे grown up. इतनी गहराई में इसका आई डिडंट हैव द नॉलेज. सो वाह. अब देखिए फ्रॉम एज, और ये चीज़ मैं सारा कहना चाहूँगा कि नॉट ओनली बीइंग ब्रॉट अप इन अ मुस्लिम सोसाइटी और बैकड्रॉप बीइंग इन द मुस्लिम कल्चर एंड ऑल, जो नॉलेज आज इन्होंने दिया है, और वो अगेन शी सेड शी इज फ्रॉम बंगाल और शी सेड शी इज ब्लेस्ड. प्रैक्टिसिंग डिवोट हिंदू, बट Devout दैट Hindu. डजंट स्टॉप मी. मैं हर दरगाह में That's जाती हूँ, great मत्था Indian. टेकती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, That's great Indian. गुरुद्वारे जाती हूँ, हम सब जाते हैं. माय सन हैज गॉन थ्रू आउट. देखिए इबादत है. अब आप किसकी इबादत कर रहे हैं, है तो वो एक ही. तो आप सर झुका रहे हैं. अब मुझे एक बात का जवाब आप दोनों देंगे. रविंद्र संगीत, वो उसके बारे में भी कुछ बताइए आप लोग. बिकॉज बचपन में यू नो आई लिव 4 years in Calcutta, Ripon Street and all, and we had a very big house over there. तो वो रविंद्र संगीत का जब वो हम घरों से सुनते थे, एंड ऑल द रिच पीपल यूज्ड टू, नॉट रिच पीपल, वी वर ऑल फोर्स्ड एज अ चाइल्ड. आप फोर्स की बात मेरे से पूछ रहे थे. पुश, मुझे संगीत में शायद इंटरेस्ट ही नहीं होता अगर बाबा पुश नहीं करते. उन्होंने मुझे ज़बानी सिखाया. जब मैं 3 साल की थी, आई वन द फर्स्ट प्राइज इन अ कॉन्टेस्ट. मेरा एज ग्रुप ही नहीं था, मैं 3 साल की थी. 5 साल से एंट्री थी.
पर बाबा को बड़ा शौक था म्यूज़िक का, तो उन्होंने मुझे एक रविंद्र संगीत, एक टू कुछ हुआ लगे, एक टू कुकाता सुनी, ये सिखाया था। रूना लैला का गाया हुआ था, यहाँ भी देखिए सिंक्रेटिक। रूना लैला बहुत फेमस है बंगाल में, रविंद्र संगीत भी गाती हैं, कव्वाली भी गाती हैं, तो लालन फ़कीर के कलाम भी गाती हैं। कल तक मैं अपने आप को बड़ा कलाकार समझता था, और यहाँ जितने भी नए यंगस्टर्स हैं, आई कीप ऑन टेलिंग देम, और मैं आप लोगों से भी चाहूँगा, जो चाहे NSD को हो, चाहे बाहर थिएटर वाले हों, चाहे बॉलीवुड के न्यू स्टार्स हों, नॉट ओनली हिम बट द एंटायर न्यू जनरेशन हु इज़ वर्किंग सो हार्ड इनटू थिएटर एंड ऑल, एंड विद देयर पुअर रिजल्ट, और मे बी कुछ सालों के बाद उनका क्रेज़ ख़त्म हो जाता है, फिर वो किसी और लाइफस्टाइल में। आई वांट सम वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ ऑफ योर्स विच इज़ गोना हेल्प देम इन नियर फ्यूचर, कि सीखने के बाद अपने आप को कैसे लेकर के चलें। सिर्फ इंटरेस्ट होता है, या क्योंकि बैक पुश हमेशा मिलता नहीं, नहीं हमेशा या नहीं, देखिए, आदमी back शादी push के बाद आपको शुरू कराता है, शुरू push आपको कराता शुरू कराता है, है। राइट। थोड़ा आपका कल्चर सहारा देता है। जैसे पीपल फ्रॉम बंगाल, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि जैसे बाउल फ़कीरी संगीत है, तो बाउल फ़कीरी संगीत इज़ ऑल्सो वेरी सिंक्रेटिक। तो थिएटर आई थिंक, है ना? थिएटर एंड म्यूजिक एंड ऑल, आई एम टॉकिंग ऑफ एंटायर कल्चर। यू हैव कि अब जो जनरेशन फ़ोन लेकर के पड़ी हुई है, आने वाले वक्त में आपको लगता है कि दिल भी पीपल, ये डोंट यू थिंक इट्स अ डाइंग कल्चर? देखिए हमारा बच्चा भी तो फ़ोन लेके सुनता है, नहीं, ठीक I है, think थोड़ा the- खींचना पड़ता है। The other way is because there is so much phone, it's there on Instagram. So you know, oh, it was very cool. They attended a theater, you know, and it's immediately there on Instagram. So देखिए, then they will, oh, अच्छा, This आपने is- ये attend किया, जो कि This is Instagram why है. we keep So it's like posting. amazing. She posts, I post. जब So भी मैं actually- यहाँ आती हूँ, मेरे Thanks. बच्चे के अगर आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे देखेंगे, मेरा बच्चा शायद 3.5-4 साल का होगा जब फर्स्ट मैंने पोस्ट डाला है इसका जश्न बचपन का। सो व्हाट इज़ ही डूइंग, कहीं पे मास्क बना रहा है, कहीं पे कुछ कर रहा है, फिर हम बच्चों को देख रहे हैं थांगटा कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं कश्मीर का प्ले कर रहे हैं, जो उनका जम्मू का ट्रेडिशनल प्ले है, वो आर्ट फॉर्म्स एक्सपोज कर रहे हैं। तो दिस इज इन अ वे माई टाइनी लिटिल एफर्ट इन प्रोमोटिंग दिस। माई क्वेश्चन इज, हाउ डज अ पर्सन, जैसे शादी के बाद भाई जिम्मेदारी बढ़ गई, लेट्स टॉक ऑफ फाइनेंस, इतने एज नहीं है इनका, लेकिन आई ऑलवेज सी इज वेरी सीरियस, इज वेरी हार्ड वर्किंग, एंड दूसरा वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, हार्डली वर्किंग, हार्ड वर्किंग, एंड वो स्ट्रेस के बाद फिर कल्चर की तरफ कहाँ बढ़ पाते हैं हमारे बच्चे हमसे। कल्चर, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि आई डिड वन प्ले इन माई लाइफ एज अ प्ले राइट, एज अ एक्टर, और उसके बाद वो हिट हुआ, बेगम कहाँ चली, उसके बाद हिम्मत नहीं थी सेकंड उसको रिपीट भी कर लूँ, दो आई वाज गेटिंग 10 times मोर पेमेंट, हाँ. फिर भी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि इसको रिपीट कर लूँ। आजकल देयर आर न्यू कॉन्सेप्ट्स। अभी आपने अगर देखा होगा माइक्रो थिएटर फेस्टिवल, इस पे दुनिया बहुत डिवाइडेड है। 10 मिनट चल प्लेस, तो नहीं रहा है, बिरयानी का बंद 10 करना है। मिनट प्लेस का इन्होंने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। हमने लिटिल थिएटर ग्रुप में अभी देखा है LTG ऑडिटोरियम, LTG में बसंत पंचमी के दिन हुआ था, 6th को, बसंत के बाद वाले दिन। तो आई थिंक द होल पॉइंट दैट लोगों को टाइम नहीं मिलता रिहर्सल का। थिएटर इज़ वन थिंग, बिना रिहर्सल के आप कर नहीं सकते, सेकंड टेक होता नहीं। हम सब जिन्होंने स्टेज पे कदम रखा है, हम सबको पता होगा कि वन मिस डायलॉग, प्रॉम्प्टर कहीं चला गया, कुछ इशू हो तो गया। मतलब आप कह रही हैं कि कल्चर डाई होता जाएगा? नहीं, देयर आर अदर कॉन्सेप्ट्स। ये जो 10 मिनट थिएटर का फॉर्मेट, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, नहीं बताइए। माइक्रो थिएटर फेस्टिवल 10 मिनट प्लीज। Right. दुनिया डिवाइडेड थी थिएटर फ्रेटर्निटी कि भाई 10 मिनट्स में आप कॉन्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, बट वी सॉ सम ट्रिमेंडस दैट हैपेंड इन LTG। अभी हुआ था, आप उस पे भी आई हैव अ पोस्ट, इफ यू वांट यू कैन। आई वुड लव टू सी दैट, एंड टू ऑल माई विजिटर्स, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, डू गो टू ऑल माई एक्टर्स एंड द ग्रेट पीपल। ये कह रहे थे कि आई आस्क्ड देम इनिशियली, एंड एज अ विजिटर शी स्टार्टेड, और उसके बाद तो पैरों तली ज़मीन निकल चुकी है मेरी। ऐसा कुछ नहीं, देयर आर वेज। देखिए दूसरा है कि शी कैन पुट द लिंक बिलो दिस ऑल्सो, योर लिंक। आई डिडंट टेक एनी वीडियोस बिकॉज आइडियली वन शुड। मैंने फोटोज डाली हैं, बट यू लेट मीज गेट टू सी द लाइटिंग, यू गेट टू सी द कॉन्सेप्ट। मेरे कज़न है बादल राय, वन ऑफ दी, ही वाज एन इंस्ट्रक्टर एट NSD,
अभी भी शायद विजिटिंग इंस्ट्रक्टर हैं. तो ही इज़ वन ऑफ द doyens of Bengali theatre in Delhi. So Bengali theatre is also what keeps a lot of things alive for us. Right. उनका रविंद्रनाथ टैगोर को आपने मेंशन किया, उन्हीं का एक प्ले शुक्खो विचार, Okay. वो उन्होंने वहाँ स्टेज किया था 10 मिनट के फॉर्मेट. Oh. तो मेरे ख्याल से लोग ये 10 मिनट थिएटर And फेस्टिवल that was very challenging कि 10 minutes के अंदर. it was challenging, but the point is when you challenge people, I think theatre people come out best when they are challenged. White and white. So yes, rates are dropping, yes, but there are people like us जो स्टेज पे जा चुके हैं, we are all ex-theatre performers. तो हम अपने बच्चों को थोड़ा धकेलते हैं, फिर वो खुद इंटरेस्टेड हो जाते हैं. बट हाँ, आई सी इन हिज फ्रेंड्स की जहाँ encouragement नहीं मिलती, बच्चे जाते नहीं. So it is on us. I think it is on us. It is on this generation, next generation. The continuation of theatre will happen. Theatre has been एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि फिल्म स्टार्स बॉलीवुड के बच्चे जो हैं वो कई लोग परस्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स का एक एनिग्मा बना होता है जिसको वो लोग उस तक नहीं पहुँच सकते हैं. लेट्स टॉक ऑफ सम सुपर स्टार्स, बिग स्टार्स या सर, वैसे. यहाँ आप उनसे पूछिए. आई एम जीरो ऑन बॉलीवुड. आई हैव ओके, एक बॉलीवुड क्वेश्चन आपसे. एक बॉलीवुड क्वेश्चन I आपसे. don't watch Bollywood. Only I watch. I'm very big. एक या बट जॉइन मी, हाँ, डोंट लीव मी अलोन. तो बॉलीवुड का क्वेश्चन ये है कि जब बड़े स्टार्स हैं उनके बच्चे वो क्यों नहीं बॉलीवुड में एंट्री, एक चाहे छोटा लेवल हो, मीडियम लेवल हो या बड़ा लेवल हो, क्यों नहीं मार पाते हैं या कितने परसेंट मारते हैं? व्हाट्स योर व्यूज अबाउट द सेलिब्रिटीज, द स्टार्स ऑफ बॉलीवुड चिल्ड्रन गेटिंग फ्लॉप और बीइंग अ हिट? I have no one answer for this because we have some brilliant actors like Alia Bhatt who are, I think she's fabulous. Or there are many such children that we're seeing doing absolutely fabulous acting. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से जितेंद्र धर्मेंद्र ऑफ माई एज, तो उसके हिसाब से आप बताइए कि So उनके I बच्चे. think the general, this is very sad, but I find that the acting capabilities have increased over the years. The Jitendras and the धर्मेंद्र Dharmendras, I'm not sure about how good they were as actors. They were fabulous stars, I'm sure. But today we actually have actors. We have method actors. They're doing, also because we have such amazing films which have such strong stories, such strong production. Like very very amazing, like the Lapata Ladies or any of these others. So that's why we do more than stars. We have actors now. So it is possible for many of these people whose parents may actually not have been such great actors, but the children are actually doing a better job sometimes. ये बात मुझे समझने के लिए मुश्किल है, स्टार्स एंड एक्टर्स. हाँ, जैसे Vicky Kaushal, for example, again Okay. his father was also from the industry, but he started off with a film, or I don't know whether that was his first film or not, but Masan is such a powerful film. We may not call it commercial, but that is something which is an actor's delight and a director's delight. So that's the kind of films which are coming out now, which is why I'm such a big fan of Bollywood. And those guys are acting. I mean, he's not, no, this is the non-glamorous. He's somebody who works in burning cadavers on Banaras Ghat. That's his role. 20 years back, we wouldn't have had heroes doing this role. So today you have such very strong story, plot-based films. So I think the youngsters today are doing a great job. I feel elevated talking with you people, with you all, believe it or not, because देखिए यहाँ बहुत अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है. 20 years back I did my play बेगम कहाँ चली, जो मैं भी बता रहा था. My children were this big, now they are this big. और that play was a big hit, but मैं continue नहीं कर सका because I'm IT from IT industry. और वो सीनियर ऐप डिज़ाइनर, एकदम से यहाँ आना बहुत मुश्किल था. लेकिन यहाँ पर आने के बाद यू हैव ऑल रिवाइव द थिंग्स. और एक चीज़ की जो अब मुझे महसूस होती है, कमी होती है, कि आप लोग ऑन द टॉक शो, ऑन द बिग शोज, यू पीपल लाइक यू आर नॉट टॉकिंग. वो तो देखिए हमारा वो ग्लैम अपील है नहीं. We are real people. कौन आंटी को So- बुलाएगा talk show में? Exactly, we are You real call people yourself with real auntie, views. then I am the grandpa because I'm just 16. 6 इधर से इधर कर लो. It's not a question of 16 or 60. It's a question 16 or of, 61. so we are not. I don't think we are those glammy people, and
we don't have collabs and we are not marketable. So people generally go for marketable things. You'll have to now research the YouTube algorithm. YouTube If I give you a role in telefilm, how will you be comfortable? I'm not sure. I've never been that great. डायलॉग वायलॉग मारना तो आता होगा यार. हाँ डायलॉग मारना आता है. अभी मैं कहता हूँ यहाँ क्यों खड़े हो, घर क्यों नहीं आए, देर इतना देर कैसे हो गया? कैसे क्या मतलब? Daddy, oh don't you dare. Well, that's it. That's how I prepared my. Huh? Thank you so much. Thanks a lot. Pleasure speaking और to वो that's how I prepared my actors. जो 12 के 12 फ्रेशर थे, improv. फीस भर कर आ गए थे मेरे पास और एक्सटेम्पोर खटाखट उल्टा सीधा डायलॉग बोलता, कहता उल्टा सीधा जवाब दे. Extempore ही इनको ज़्यादा नहीं कराया गया. एक्सटेम्परी आई डोंट नो वेदर यू मस्ट हैव डन इट. हम लोग के टाइम पे इम्प्रोव और एक्सटेम्परी बहुत चलता था. लाइक आई नो आई एम फ्रॉम द थिएटर सोसाइटी. यू वुड हैव आल्सो बीन. सो करा हुआ है हम सब ने. नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले. आई थॉट वो एक्सेप्शन था 2005 में जब वो प्ले हो रहा था. और उसके बाद फ्रेशर्स 10 फ्रेशर्स, ओनली 1 एक्ट्रेस जो बेगम का रोल कर रही थी, अनीता शर्मा, वो प्ले कर चुकी थी और मैं भी फ्रेशर था. तो 11 एक्टर्स फ्रेशर्स एंड जो धमाका हुआ था. आई एक्सपेक्ट टू हियर मोर अबाउट यू. कम, यू आर वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई विल गिव यू द डिटेल एंड ऑल. और ये आज शाम को ही मैं ये इसको डाल रहा हूँ. थैंक्स अ लॉट. गिव मी योर नेम अगेन. हीरो नील. ग्रेट यार. एंड I'm Jayati. Jayati. I'm Indrani. Indrani Nice meeting ji. you. Nice. Thanks a lot. See you very soon. Bye.